Good morning, students. Good morning. Today we are going to talk about the reliability. What is reliability? What are the nature of reliability? And what do we mean by reliability? As you all know, reliability is the feature of psychological test. We also understand the nature of psychological test. What is psychological test? What are the feature of psychological test? This reliability is one of the feature of psychological test. We can say that reliability is the property of a particular psychological test. We all know the nature of psychological test. What is psychological test? Because we are discussing the property of psychological test, that is reliability. So we also need to understand the psychological test. What is psychological test? As we have discussed earlier, psychological test is an essential and objective and standardized measure of a sample of behavior. It is objective, which means that is free from subjective biases. Standardization means the uniformity in instructions, administration, scoring, rating, and interpretation. This means the psychological test is objective and standardized measure of a sample of behavior. So we also understand the psychological test, what is. And now we are going to discuss the reliability because it is directly related to the psychological test. It is the feature of a psychological test. So we discuss the reliability. What is the reliability and how we can understand. Any psychological tests have some properties, some features, some uh, some characteristics. Out of those, the reliability is one of the tests. In this lecture, we will talk only reliability. We will talk about only reliability. As you all know, reliability means the consistency of results. It is the consistency found in a person's result. Reliability is an index of precision or accuracy in measurements. What does it mean? We can observe the precision, accuracy, whatever score we get in any psychological test. That is accurate, that is pure. There is no error in that. Okay. Further, an index of consistency of score or measurement reflected in reproducibility of the score. Example, different examiners, different time, different set of equivalent items. What is that? It means we observe the consistency which has been produced by the individual on different occasions, on different times, by different examiners, by different set of equivalent items. We can see the consistency of score of the individual on different times. He will be
producing more or less same results। चाहे हम आज किसी व्यक्ति का एक साइकोलॉजिकल टेस्ट पर स्कोर लेते हैं और चाहे हम 15 और 20 दिन बाद में किसी व्यक्ति का साइकोलॉजिकल टेस्ट का स्कोर लेते हैं, हम देखेंगे कि वहां दोनों ओकेजन पे, दोनों सेटिंग्स में, दोनों कंडीशन में उस व्यक्ति का उस पर्टिकुलर टेस्ट पे मोर और लेस सेम स्कोर मिलेगा। अगर हमने किसी को आज एक्सट्रोवर्ट कहा किसी साइकोलॉजी पर्सनालिटी टेस्ट में, कि वो नेक्स्ट चाहे हम 20 दिन बाद में मेजर करें या 40 दिन बाद में इसको असेस करें, वी विल फाइंड दैट कि वो व्यक्ति मोर और लेस एक्सट्रोवर्ट कैटेगरी का ही मिलेगा। ओके, so reliability means the consistency of scores। Further, reliability means the proportions of true scores to total scores। What is that? It means we get the true score out of total scores। We get the true scores. That true score is free from error। There is no chance of error in that true score। Okay, in technical terms we can say that the reliability means the proportion of true scores to total scores। total score में से जो आपका ट्रू स्कोर आया है वो रिलायबिलिटी होता है, सिंपल शब्दों में। ठीक है, तो रिलायबिलिटी से हम यहाँ समझ रहे हैं कि जितना भी स्कोर आया है किसी पर्टिकुलर टेस्ट पे, उस टोटल स्कोर में से आपका जो रियल स्कोर था, ट्रू स्कोर था, वही आपका रिलायबिलिटी है। हो सकता है कि कुछ स्कोर आपके गेस की वजह से या किसी की आपने ऐसे टिक कर दिया किसी क्वेश्चन को, उसकी वजह से 1-2 नंबर आपका ऊपर ज्यादा हो गया, लेकिन एक्चुअल जो स्कोर था आपका, एक्चुअल जो ट्रू स्कोर था, वही आपका रिलायबिलिटी होता है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी का मतलब हमने समझ लिया। रिलायबिलिटी इज एन इंडेक्स ऑफ प्रिसिजन और एक्यूरेसी इन मेजर। हम एक व्यक्ति के स्कोर को कंसिस्टेंसी, स्कोर में कंसिस्टेंसी ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो स्कोर हमने अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में लिया हो। ओके, so as we know that the true score includes some amount of error, that error due to the chance factor। You know, every total score includes some amount of error component। error means कि किसी व्यक्ति ने किसी पर्टिकुलर टेस्ट पे 90 स्कोर ऑब्टेन किया। अब 90 स्कोर में हो सकता है कि कुछ जो स्कोर है वो एरर की वजह से उसने ऑब्टेन किया हो। ओके, तो टोटल स्कोर एनकम्पासेस some amount of error, which error is due to chance factor। Reliability provides the extent to which the obtained score is free from error component। Reliability हमें एरर कंपोनेंट से फ्री रखती है, या रिलायबिलिटी में एरर कंपोनेंट नहीं होता, केवल प्योर ओरिजिनल स्कोर, ट्रू स्कोर हमारे सामने होता है। ओके, नाउ कम टू दी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। देयर कैन बी इंटरनल कंसिस्टेंसी, split half। What is the internal consistency?
A measure of internal stability of test. Internal consistency is the measure of internal stability test. Stability of each individual test item. Internal consistency measured in terms of inter-item correlation. What does it mean, internal consistency? इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब है एक जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसके अंदर के जो आइटम्स हैं उनमें आपस में कंसिस्टेंसी है। अगर उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है तो वो रिलायबल टेस्ट नहीं। कैसे? इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ है कि हमने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया जो इमोशंस को मेजर करता है, इमोशनल बिहेवियर को मेजर करता है। उस साइकोलॉजिकल टेस्ट में इमोशनल बिहेवियर को मेजर करने के लिए आइटम्स होने चाहिए, तभी उनमें इंटरनल कंसिस्टेंसी होगी, न कि उसमें कोई इंटेलिजेंस के आइटम हो। अगर आपने इमोशनल बिहेवियर के टेस्ट में इंटेलिजेंस को मापने वाले आइटम्स डाल दिए तो उसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी नहीं होगी, क्योंकि जो सेम एक जो टेस्ट है वो एक ही चीज को मापता है और उसी के आइटम्स हैं उसमें, तो इंटरनल कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। ठीक है, स्प्लिट ऑफ का मतलब यहाँ क्या है? इट इज ऑल्सो ए मेजर ऑफ इंटरनल स्टेबिलिटी। Split off means it measures in terms of correlation between score on two halves. एक टेस्ट को हमने दो भागों में बांट दिया। हम बात कर रहे थे, जैसे हमने कहा इमोशनल बिहेवियर को मेजर करने वाला एक टेस्ट बनाया हमने, तो इमोशनल बिहेवियर के मेजरमेंट वाले टेस्ट में फॉर एग्जांपल हमारे सामने 50 आइटम है, हमने उसको दो भागों में बांट लिया, पहले 25 और लास्ट के 25। उन दोनों में पहले 25 के स्कोर को और लास्ट के 25 के स्कोर को आपस में हमने कोरिलेट करके देखा क्या उन दोनों में कोरिलेशन है, या हमने ओड आइटम्स को और इवन आइटम्स को अलग अलग कर लिया। 50 आइटम में से उन दोनों को कोरिलेट करके देखा क्या उनमें कंसिस्टेंसी है, दोनों में क्या कोरिलेशन है। तो स्प्लिट ऑफ का मतलब यहाँ ये है कि हमने एक टेस्ट को दो भागों में बांट लिया या टू हाफ्स में हमने बांट लिया, तो उन दोनों में टू हाफ्स के जो स्कोर थे उन दोनों के बीच में हमने कोरिलेशंस को देखा कि अगर उन दोनों में कोरिलेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, वो एक टेस्ट को एक डोमेन को मेजर कर रहे हैं और उनमें कंसिस्टेंसी है। ठीक है, ये जो है रिलायबिलिटी के स्प्लिट ऑफ मेथड से रिलेटेड है। ओके, थर्ड क्या है? टेस्ट रिटेस्ट। एक टेस्ट रिटेस्ट मेथड हमारे सामने रिलायबिलिटी का क्या है? इट मेजर्स ऑफ टेम्पोरल स्टेबिलिटी। टेम्पोरल मीन्स यहाँ टाइम से मतलब है कि हम यहाँ दो टाइम के बीच में स्टेबिलिटी देख रहे हैं कि क्या एक व्यक्ति का आज स्कोर में और 20 दिन बाद के स्कोर में कोई रिलेशनशिप है, कंसिस्टेंसी है। हमने यहाँ एक टेस्ट को दो भागों में नहीं बांटा, हमने एक टेस्ट को दो ओकेजन पे किया, टेस्ट और रीटेस्ट। एक बार टेस्ट किया और उसको 15-20 दिन बाद में टेस्ट किया, एक बार टेस्ट के स्कोर को और 15 दिन के बाद के टेस्ट के स्कोर को हमने कोरिलेट किया, रिलेशनशिप देखा। It measures in terms of correlation between scores on two testing with a considerable time gap. It means हमने एक आज टेस्ट किया और एक 15 या 20 दिन बाद एक टाइम गैप के बाद हमने दोबारा टेस्टिंग की, तो
उस टेस्टिंग के स्कोर में और जो पहले हमने टेस्ट स्कोर किया था, दोनों में क्या कोई कोरिलेशन है? क्या स्कोर में कोरिलेशन है? क्या स्कोर में कंसिस्टेंसी है? देन इट इज कॉल्ड टेस्ट रिटेस्ट मेथड ऑफ रिलायबिलिटी और टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। फोर्थ वन क्या है? पैरेलल फॉर्म्स। पैरेलल फॉर्म से मतलब यहाँ क्या है? ए मेजर ऑफ इक्विवेलेंस बिटवीन टू फॉर्म ऑफ सेम टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक इमोशनल बिहेवियर का टेस्ट हमने आज बनाया है और एक इमोशनल बिहेवियर का टेस्ट जो पहले बना हुआ है, किसी और व्यक्ति ने बनाया। उस व्यक्ति के का इमोशनल बिहेवियर जो टेस्ट है वो, और जो हमने बनाया है इमोशनल बिहेवियर टेस्ट, उन दोनों को हम कोरिलेट करके देखते हैं क्या दोनों सेम रिजल्ट देते हैं, या दोनों के जो आइटम्स है सेम है, क्या दोनों के टेस्ट स्कोर में सिमिलैरिटी है, कंसिस्टेंसी है। तो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी बोला जाता है। इट मेजर्स इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन बिटवीन स्कोर ऑफ द टू फॉर्म्स। हमारे पास इमोशनल बिहेवियर मेजर करने के दो फॉर्म्स हैं, टू फॉर्म्स हैं। अब दोनों फॉर्म्स को हमने देखा कि क्या दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, जो हमने आज टेस्ट बनाया है और जो पहले से किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति ने बना रखा है उसी डोमेन को मेजर करने के लिए, इमोशनल बिहेवियर को मेजर करने के लिए। तो दोनों के टेस्ट के स्कोर्स में जो रिलेशनशिप आता है या कोरिलेशन जो आता है वो क्या होता है? पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कहलाता है। ओके, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। अब एक जो कैटेगरी रिलायबिलिटी की टाइप की है, इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, इंटर-रेटर रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? ये इंटर-रेटर रिलायबिलिटी which is found in a particular qualitative analysis, subjective judgment based और कंटेंट एनालिसिस। प्रोजेक्टिव टेस्ट में आप लोगों को इंटर-रेटर रिलायबिलिटीज असेस करने का मौका मिलता है। इट कोरिलेट्स बिटवीन स्कोर्स गिवन बाय टू एग्जामिनर्स। हमने पहले तो टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि वे टेस्ट के स्कोर्स में कंसिस्टेंसी है। क्या इंटर-रेटर में भी कंसिस्टेंसी होती है? मान लो मैंने एक व्यक्ति को इमोशनल बिहेवियर पे मैंने रेट किया और एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने इमोशनल बिहेवियर को रेट किया। क्या जितना मेरा रेटिंग था उस व्यक्ति के बारे में, क्या वैसा ही मोर और लेस रेटिंग दूसरा साइकोलॉजिस्ट कर रहा है? क्या मेरी रेटिंग में और दूसरे व्यक्ति के रेटिंग में, रेटिंग के स्कोर्स में कोई कंसिस्टेंसी है? मैंने कहा कि भाई इस व्यक्ति में इमोशनल बिहेवियर जो दिखाई देता है वो पॉजिटिव इमोशनल बिहेवियर दिखाई देता है। क्या दूसरे रेटर्स का भी यही मानना था कि उसने भी उसको पॉजिटिव इमोशनल बिहेवियर रेट किया? दोनों में हमने क्या देखा? इंटर-रेटर रिलायबिलिटी देखी। इंटर-रेटर रिलायबिलिटी मतलब इट इज subjective judgment. When it comes to subjective judgment based analysis और content analysis और प्रोजेक्टिव टेस्ट, जब भी प्रोजेक्टिव टेस्ट में की बात करते हैं वहां इंटर-रेटर रिलायबिलिटीज हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। इंटर-रेटर रिलायबिलिटीज का मतलब यहाँ आप लोगों ने समझ लिया। इट इज द कोरिलेशन बिटवीन स्कोर्स गिवन बाय द टू एग्जामिनर्स। दो एग्जामिनर्स ने, दो साइकोलॉजिस्ट ने एक व्यक्ति को ऑब्जर्व किया और दोनों ने मोर और लेस सेम ही अपना जजमेंट दिया। तो ये क्या है? इंटर-रेटर रिलायबिलिटी कहलाती है। ओके, हम एग्जांपल ले सकते हैं कि वी आर सेलेक्टिंग ए पर्टिकुलर कैंडिडेट फॉर द ए पर्टिकुलर पोस्ट। हम देखते हैं कि मैंने किसी व्यक्ति को कितना स्कोर दिया और दूसरे एग्जामिनर ने उसको कितना स्कोर दिया। क्या दोनों एग्जामिनर के बीच में
रेटिंग जो थी क्या कंसिस्टेंट थी? मैंने कहा, मैंने उसको 50 नंबर दिए 100 में से, दूसरे व्यक्ति ने 100 में से 90 नंबर दे दिए। 50 और 90 में क्या कोई कंसिस्टेंसी है? कहीं ना कहीं इंटररेट रिलायबिलिटीज का मतलब यहाँ क्या है, दो डिफरेंट एग्जामिनर्स की रेटिंग से क्या स्कोर में कंसिस्टेंसी है, क्या उन्होंने वैसा ही देखा कि जैसा उस व्यक्ति में वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है कि नहीं। सो द इंटररेट रिलायबिलिटी इज one of the type of reliability. We have discussed the what is the reliability and what are the types of reliability. In types of reliability, we have discussed the reliability. You can say the internal consistency, split task, test, retest, parallel forms, and inter-rater reliability. So these are the types of reliability. We should understand the reliability and its types.